जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 10:50 ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚਾਵਲ ਚੋਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ satsang ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ satsang ਘਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ satsang ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ satsang ਸਾਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ satsang ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਡਰੈਸ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ 5 ਕੇਲੇ ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਰੂਟ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਲਾਈ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਘਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਲਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 5 ਕੇਲੇ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਬਰਡ ਜੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ satsang ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਈਵਨਿੰਗ ਸੈਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਰਡ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ 7:15 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਡ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲੋਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ satsang ਘਰ ਵਿੱਚ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੋਕੇਟ ਸਵਰੂਪ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਦੋ ਲੋਕੇਟ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਾਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਾਲੀ ਅੜਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਿੱਗੀ, ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਟਕਣ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਟਕਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲਟਕਣ। ਤੇ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਗਈ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੈਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਟਕਣ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਲਟਕਣ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲਟਕਣ ਹੀ ਨੀ ਮਾਨ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨੀ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਰਚੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਮੈਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਟਕਣ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਨੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਸੋਨਾ ਗਵਾਚਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪਤਾ ਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਟਕਣ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਲੱਭ ਗਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਵਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਝੋ ਸਭ ਵਿਕਵਾ ਕੇ ਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੋਬ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਟਕਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ
ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਆੜ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਟਕਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬਣੀ ਧੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਪੇਚ ਪਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ, ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 100 200 ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਟਕਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਝੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਲੱਭਣ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਖਰਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਇੱਕਦਮ ਮਿਰਰ ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਟਕਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਏ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਥੋੜਾ ਲਈ ਫਿਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਨੀ ਨਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਖਰਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਟਵਾਣੇ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਖ ਕਰੀ ਜਾਣ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਭਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू अलोट गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारी कृपा सदा सहाय। संगत जी, आज संडे है 30 नवंबर, शुक्राना गुरुपा का शुक्राना सत्संग के लिए। कल शनिवार को जो गुरुपा ने चमत्कार करवाए वो आज शुक्राना सत्संग के माध्यम से शेयर करना चाहिए उनकी बेटी। संगत जी, कल शनिवार था, गुरुपा ने पहले ही बताया 7 शनिवार को नींबू को मंत्र जाप करके उल्टा वारना है, खुद से, बच्चों से, हस्बैंड से, नेगेटिविटी के कारण। तो कल जब मैंने बच्चों से और खुद से अलग अलग करके वारा और उन्हें जला के बाहर फेंका संगत जी, सबसे पहले चमत्कार तो जो शिवालय से मैं जल लाई थी वो 4 दिन से एज इट इज़ मैंने रख दिया था मंदिर में, उसको छिड़का ही नहीं था, ना ही इनटेक किया था, पिया था। जैसे ही मैंने अपने ऊपर से नींबू वारा गुरुजी का मंत्र जाप करके, सबसे पहले तो गुरुपा ने वो जल का छिड़काव करवाया। उसके बाद जो बच्चे पूरे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे थे, मतलब उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मम्मी करके जो एक आवाज़ निकलती है बच्चों की, मतलब अलग ही होता है, गुस्से वाले मूड में थे, जबकि बहुत छोटे हैं बच्चे। और नींबू घोरने के बाद, उनको जला के फेंकने के बाद उनकी जो हंसी निकली है, उनकी जो आवाज़ निकली है, कृपा अनंतम शुक्राना। कपूर नहीं जला रही थी गुरुपा की बेटी, कपूर जलाया। तो संगत जी, जब आंटी भी सत्संग काफ़ी शेयर करते हैं कि शिव महापुराण में पढ़ते हैं, वो मंत्र जाप भी करते हैं, और मैं भी अगर देखूं शिवालय जाते हैं, गुरुपा जल चढ़वाते हैं, वहीं पे मैं शिवालय का जल पी लेती हूँ। फिर भी ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो 100% कम्प्लीटली नहीं भस्म होती है। मतलब वो नींबू घोरने के बाद भी उसका इफ़ेक्ट कल दिखा हाथों हाथ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब संगत जी, मम्मी के लिए मैं शुक्राना सत्संग के साथ साथ अरदास भी शेयर करना चाहूँगी। जब 3 दिन पहले मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, तब मम्मी के रिगार्डिंग गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था, वो अच्छा नहीं था। लेकिन और आज भी जब मम्मी की वापस वही वॉमिट है और सब कुछ, क्योंकि भाभी मतलब गई हैं मायके रहने थोड़े टाइम के लिए, तो पीछे से मम्मी की तबीयत ख़राब होना, और ऐसा ही जब मेरी सास है वो भी बाहर गई थी और पीछे से बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी। तो अगर हम हर रिश्ते में शक करें, और गुरुपा सत्संग सुनवा भी रहे थे भाभी के वापस से, तो अगर हम हर रिश्ते में शक करें तो हम इतने अच्छे तो नहीं है कि हम में कोई खोट नहीं है। लेकिन जब चीज़ें जोड़ी जाए सत्संग सुन सुन के उनके माध्यम से, तो ऐसा लगता है कि गुरुपा प्लीज़ मेहर कीजिए। इतनी शक्तियाँ नहीं होती कि कोई किसी और की दी हुई नेगेटिविटी ले, क्योंकि आपने अपनी संगत बनाया तो ज़रूर से हम इतने बुरे कर्म नहीं करते होंगे। लेकिन अब आप मम्मी को ब्लेस करिएगा संगत जी, उनको वॉमिट है, लूज़ मोशन है, सर्दी जुकाम नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है नहीं पता। और मम्मी ने ड्रॉर वगैरह देखे थे भाभी की, तो वहाँ से सुइयाँ वगैरह, काले धागे, सब कुछ मिला ही था उनको। अब हो सकता है उनको हाथ लगाया, हाथों से हटाया तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं पता संगत जी।
पर गुरुपा ब्लेस करिएगा। मुझे पता है गुरुपा ने अभी दिन में वापस सत्संग सुनवाया था। एक आंटी बता रही थी कि उनकी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन वो ठीक कर दिया गुरुपा ने, उनको ब्लेस कर दिया, क्योंकि गुरुपा ने 10 साल की हेल्थ बख्शी है मम्मी को। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई भी कितना बड़ा हो जाए, उनको माता पिता की छाया हमेशा ही चाहिए होगी। तो शुक्राना है गुरुपा का। मैं पहले ही शुक्राना कर रही हूँ मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। अब संगत जी, कृपा जो संडे को शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं, आज का मैं आपको बताती हूँ कि एक आंटी है, बहुत पहले बीच बीच में भी मैंने बताया है, किसी भी फॉर्म में आ जाती थी वो। बाहर झाड़ू लगाती हैं रोड पे, जैसे ग्रहण का या कोई भी टाइम आता था तो वो अपने आप से मांगने आ जाती थी, और गुरुपा ने जो गाइडलाइन दी होती थी कि ये देना है तो उनको दे दिया जाता था। और आज संडे को अचानक से आंटी आई दिन में 4 बजे, जबकि दिन में 4 बजे मैं उठती ही नहीं, सोती हूँ, लेकिन आज ट्यूशन गए थे बच्चे, तो आंटी आई, उन्होंने बेल बजाई, मैं नीचे ही थी। आंटी ने कहा मेरी नातिन की शादी है, आप कुछ दे दीजिए। तो मुझे बड़ा वो गुस्सा भी आ रहा था कि एक तो दिन का टाइम है और मेरी मदर इन लॉ अगर उठ जाएंगी तो वो बहुत शोर करेंगी। लेकिन मैंने उनका कहा आंटी अब मैं बाहर जाके आ रही हूँ, आपको आके देती हूँ। तो संगत जी, मैंने उनको 100 रुपीज़ ही देने थे, लेकिन जैसे ही मैं जिस काम के लिए गई थी, मुझे वहाँ रोड पे बाहर पहली बार ज़मीन पे 100 रुपीज़ का नोट मिला। तो वो मैंने लेके आ गई, मैंने किसी को नहीं देखा ना पूछा, वो मैंने उठा लिया और मैंने आके आंटी को वो दिया, और अपनी तरफ से भी 100 रुपीज़ दिए। तो गुरुपा ऐसे हेल्प करते हैं। कैसे उनको मदद पहुंचानी थी, कहाँ मदद पहुंचानी थी, मतलब 100 की सेवा तो उन्होंने करवाई, लेकिन उनको तो 200 करके ही मिले। और गुरुपा हमेशा कहते हैं तुम्हें कुछ भी सेवा दूंगा, बस घमंड मत करना, सेवा भाव से करना। संगत जी, वैसे मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि कोई देखते हैं आस पड़ोस के लोग तो वैसे ही गुरुपा कहते हैं वो लोग तुमसे जलते हैं या जो भी है, तो नज़रों में आने के बाद तो लोगों की जेलसी और बढ़ जाती है। इसलिए मेरे को ज़्यादातर लगता है कि हम घर से दूर रह के ये सब करें, लेकिन घर पे कोई आता है मांगने तो गुरुपा ठीक है मदद कर देते हैं। टाइमिंग अपनी सेट करके रखी है उन्होंने सब चीज़ की। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, बच्चों को थोड़ा सा ये जुकाम वगैरह हुआ है, गुरुपा ब्लेस करिएगा बच्चों को, प्लीज़ रहम कीजिएगा, क्योंकि तीन कल नहीं परसों बच्चों ने, छोटे वाले ने ही सबसे पहले नीचे जाके कुछ खाया था, और गुरुपा ने वैसे भी बोल रखा है नहीं खाना है, तो गुरुपा आप ब्लेस करिएगा बच्चे को, क्योंकि संगत जी उसने मुझे जिस रात वो खा के आया उस रात को उसने मेरे को मॉर्निंग में उठ के एकदम से मारा, नींद में ही जैसे जोरदार मारा बहुत। तो गुरुपा का स्वरूप उसके नीचे रखती हूँ, बच्चे के नीचे, पर गुरुपा उसे ब्लेस कीजिएगा, आपका ही बच्चा है। संगत जी, गुरुपा ने आज इतने सत्संग सुनवाए, इतने उपाय सुनवाए हैं। एक तो कहा कि मंगलवार को 7 मंगलवार 7 पान के पत्ते बेटे वैसे वार के बहते हुए पानी में बहा देने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा ही कि बहते हुए पानी में जाना रोज इतनी दूर हर मंगलवार को पॉसिबल नहीं है, तो तुरंत दूसरे शुक्राना सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया कि हम हनुमान जी पे कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमें बहते हुए पानी में डालनी है या जो अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये गुरुपा ने सोल्यूशन दिया संगत जी। लेकिन बहुत और भी सुनवाए, लेकिन अब कृपा ही पूरा करवाएंगे, जैसे कि लड्डू का भोग भी लगाना है हनुमान जी को, और मीठी रोटी का भी भोग लगाना है। लेकिन गुरुपा ने सुनवाया है तो गुरुपा ही करवाएंगे उनकी टाइमिंग से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, कल रात में हस्बैंड से बहुत बुरी फाइट नहीं कह सकते, लेकिन एक इग्नोरेंस जो नेगेटिविटी थी वो बहुत हावी थी। लेकिन गुरुपा ने जो मॉर्निंग में सबसे पहले एक रील का सत्संग सुनवाया वो ये था कि बेटी, तेरी सेवा से खुश होके मैंने तेरे और तेरे पति का साथ हमेशा के लिए ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुपा। तेरे बच्चों को निरोगी काया ब्लेस कर दिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये सत्संग जो भी सुन रहा है, आप उनकी भी जोड़ियों को ब्लेस करिए, उनके बच्चों को निरोगी काया बख्शिए, उनके माँ बाप को लंबी उम्र और हेल्थ बख्शिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। क्योंकि संगत जी, वैसे तो मैं इग्नोर कर देती हूँ चीज़ों को, लेकिन नीम करौली बाबा जी बहुत समझाते हैं कि बेटा, पत्नी होके अपने अत्याचार जो भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीख, अपने हक को लेना सीख, क्योंकि हक लेना भी उतना ही ज़रूरी है। हक का त्याग हर जगह करना ठीक नहीं है। इसलिए कल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया मालिक ने बोल बोल के। एक कहते हैं ना कि आवाज़ उठवाई, तो जब हम आवाज़ उठाते हैं तो सामने वाले को हम कभी भी पसंद नहीं आते हैं, लेकिन कृपा ने, नीम करौली बाबा जी ने शक्ति दी है तो उसे सफल भी वही करेंगे। सामने वाले को उन्होंने कहा है वो अपने आप एहसास करवाएंगे कि वो कहाँ गलत है और कहाँ नहीं।
तो शुक्राना कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के शुक्राना सत्संग का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। मेरे गुरुपा राज अंकल आंटी को खूब ब्लेस कीजिएगा। किसी तरह की कोई चिंता फिक्र ना हो, सबकी चिंता, सब संगत की चिंता हरिएगा। जो कोई भी आपकी संगत, जब जब अपनी सभी संगत बेटियों की चिंता हर लीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे फोन पे एक सत्संग आया। सत्संग पे उसका थंबनेल था कि उस दिन तूने वो चीज दबा के अपनी किस्मत दबा ली, उस चीज के दबाने से तेरी किस्मत ही दब गई। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा कि ऐसी क्या चीज दबाई मैंने, तो मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मैंने सत्संग सुना। तो संगत जी इस सत्संग में एक आंटी अपने बारे में बता रही थी कि उन्होंने भी जब ये इस तरह का कोई सत्संग सुना था, तो उन्होंने सत्संग सुना था तो उनको जो उनसे गलती हुई थी वो उनको मालूम पड़ गई कि वो किसी तांत्रिक से के संपर्क में थी, एक तांत्रिक के। तो तांत्रिक उनको बहुत ही मतलब मतलब तांत्रिक था तो तंत्र मंत्र और बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर की भटका रहा था। तो उन्होंने उस तांत्रिक से बचने के लिए किसी दूसरे तांत्रिक का सहारा लिया। तो जब उससे बच गई तो इसके वजह चंगुल में फंस गई। तो वो ये बता रही थी कि उसने कुछ सिक्के इनके हाथों से मिट्टी में दबाने के लिए बोला था कि इसको दबा दो, और कुछ उसने उस पर किया। तो उसने कहा कि अब तुम्हारे पास पैसे ही पैसे आएंगे। और तो ये हुआ ये कि उन्होंने उसके कहने पे वो बहुत खुश हुए वो लोग, और उन्होंने जो मिट्टी में जो पैसे सिक्के दबा दिए थे तो तुरंत ही उनको 1 लाख रुपए मिले। तो मगर हाथ में नहीं आए मगर मिले। तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी बताया कि मुझको तो आपका काम बहुत सार्थक हुआ, बहुत अच्छे से कराया, देखिए मुझे 1 लाख रुपए मिल गए। तो उसने कहा इसमें मेरा भी कमीशन है, 30,000 रुपये आप मुझको दें। तो संगत जी इन्होंने उसको 30,000 रुपये दिए भी, लेकिन उन्होंने, और 70,000 इनका उसमें था। तो हुआ क्या कि उसमें से इनके 30,000 रुपये ही इनको मिले, बाकी 70,000 इनके डूब गए। और फिर इनको पैसों की बहुत दिक्कतें होने लगी। तो संगत जी ये गुरुजी ने जो ये मैसेज भेजा मेरे फ़ोन पे, तो संगत जी इसी तरह की गलती मैंने भी की थी, मगर मैं किसी तांत्रिक और ओझा से नहीं, बल्कि यूट्यूब पे मतलब जो वो होते हैं ज्योतिष और पंडित, वो अपने अपने वो भेजते हैं अपना उपाय। तो उस एक उपाय में लिखा था कि 1-1 रुपए के 15 सिक्के, 15 रुपए के सिक्के एक गमले में मिट्टी में दबा दो, और फिर उसमें जब पूजा जा करो तो उसमें भी रोज थोड़ा सा पानी डालो, और ये कहो और ये इमेजिन करके कि ये मैंने पैसों का पेड़ लगाया है और मेरा ये पेड़ जो है दिनों दिन बढ़ रहा है और खूब हरा भरा हो गया है, ये इमेजिन करके उसमें जल डालो रोज। तो ऐसे करके हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, खूब पैसे आएंगे। तो संगत जी मैं कहीं और दबाने नहीं गई थी, और ना ही तो किसी तांत्रिक से पूछा था, बस इस पे पढ़ा था मैंने संगत जी।
ये पागलपन है, बेवकूफ़ी और कुछ नहीं। इस फालतू के उपाय गुरुजी तो कोई उपाय बताते नहीं थे। तो संगत जी मैंने भी एक-एक रुपए के सिक्के कलेक्ट किए और उनको धुल के और एक गमला छोटा-सा अपने घर में ही कमरे में रख लिया था। उस गमले की मिट्टी में मैंने उसको दबाया था और उसमें मैं रोज़ पानी डालती थी। ये अच्छा, तो ऐसा करके ये मैंने आज नहीं, बहुत कई साल हो गए ऐसा किया था। तो मुझे याद आया कि हाँ, मैंने भी तो दबाए थे वो सिक्के। लेकिन संगत जी फिर कुछ दिन के बाद वो सिक्के मतलब वो गमला उठा के मैं ऊपर रख आई। मैं भूल गई कि मैंने इसमें सिक्के दबाए हैं, क्योंकि मैं पानी डाल नहीं पाती थी और यहाँ बिना कमरे में तो गमला रख सकते ही नहीं है, वो तो उसके लिए रखे थे। तो मैंने उठा के ऊपर रख दिया गमला। उसके बाद संगत जी फिर सब और गमलों में पानी डालती थी, वो सूखा ही था उसमें नहीं डालती थी मैं। और पैसों की परेशानियां तो चलती ही थी, तब भी थी। तो संगत जी मुझे उसके बाद या तो गुरुजी की ही कृपा कहें कि गुरुजी ने ये उसमें पानी डलवाना बंद किया। और मुझे इतना ध्यान था कि किसी गमले में 15 रुपए हैं, किसी गमले में 15 रुपए हैं। तो फिर मैंने एक बार सभी गमलों की गुड़ाई उड़ाई करी और जिस गमले में मुझे अनुमान था उसको मैंने उठा के पलट दिया। उसकी मिट्टी में मुझे पूरे 15 रुपए मिले। मैंने सारे वो पैसे निकाल लिए और धुल के इस्तेमाल कर डाले। मैंने कहा फालतू के ये उपाय उपाय है, ना कुछ होता ना होता। तो संगत जी ये गलती मैंने की थी और ये इसी तरह का सत्संग था उनका भी, उन्होंने भी सिक्के दबाए थे। तो संगत जी गुरुजी ने वो मेरे सिक्के पहले ही निकलवा दिए, लेकिन अगर कोई उपाय भी कर लिया है तो उसका असर तो होगा ही। और यदि ये उपाय निरर्थक है, इसे करने से कुछ नहीं है, फालतू का है, तो उसका उसका भी असर पड़ता है हमारे ऊपर। तो संगत जी वो मुझे सटीक एकदम याद आ गया और गुरुजी ने मुझे बताया कि जो तूने वो दिन दवाई थी उसी से तेरी किस्मत दब गई। तो हमें ये जो यूट्यूब पे अपने आप वो उपाय उपाय आते रहते हैं और बताते रहते हैं कि ये कर लो तो ये सब हो जाएगा, तो बिना जाने समझे करना भी नहीं चाहिए। और अब जब गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी किसी उपाय उपाय में विश्वास नहीं रखते थे, तो संगत जी गुरु तो हमें इस तरह का कोई उपाय करना भी नहीं चाहिए। मगर ये गलती मैंने बहुत पहले की थी, बहुत सालों पहले। तब गुरुजी के बारे में मैं नहीं जानती थी। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। हे गुरुपा, मुझको बताने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आजकल मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, न्यूरो के डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है। उसका इलाज तो चल रहा है, मगर संगत जी मेरी बेटी कुछ चीज़ें टुकड़ों टुकड़ों में भूल जा रही है और वो उसको याद भी नहीं आ रहा है। उसके सर में भी बहुत दर्द होता है। तो मैंने सब गुरु पापे छोड़ दिया है। मैं सब गुरु पापे छोड़ दिया है। संगत जी, संगत जी पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, मगर हाँ गुरुपा से तो कहना ही कहना है। सारी परेशानी मेरे गुरुपा देख रहे हैं और वो मेरा कष्ट भी काट रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे कष्ट 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ और 80% और 10% तुमको भोगने पड़ते हैं। हो सकता है ये कोई कर्म मेरा हो और जो मेरे बच्चे के इस कष्ट के रूप में मेरे सामने आया है, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझको चिंता रहती है उसकी कि मैं अकेले कहीं इसको भेज नहीं सकती। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ, मुझे इतना समय नहीं है। करो या तो उसकी बहन को भेजूँ, तो बहन को भी तो अपना काम है, वो तो उसके संग बन के रह जाएगी, फिर उसका अपना भी तो करियर है। हे गुरुपा, हे गुरुपा, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई गुरुपा, इस समस्या से बाहर निकालिए मेरे गुरुपा। ये 10% भी हम नहीं झेल पा रहे हैं गुरु जी, हमें माफ कर दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मेरी बेटी को उसका इलाज तो चल ही रहा है, पर उसको सपने में कुछ लोग आते हैं जो ऐसा लगता है कि इस लोक के नहीं हैं। वो वो जिस लोक के हैं उस लोक को भी आप जानते हैं, उनको भी आप जानते हैं गुरुपा। वो पहले एक व्यक्ति आए थे
काले कोट में चश्मा लगाया, बहुत शालीनता पूर्वक शुद्ध हिंदी बोलते हैं। सपने में उससे उसको बोलते हैं, उससे कहते हैं कि चलो मेरे साथ, समय हो गया है। हाँ, संगत जी उसकी तबीयत भी खराब ही है और वो इस तरह सपना दिख रही है। तो उसने उनको साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी समय नहीं हुआ, मैं नहीं जाऊंगी। फिर दूसरे दिन 2 लोग आए और वो लोग आके उसको समझा रहे हैं सपने में, कि उससे ये बोल रहे हैं कि तुम क्यों मना कर रही हो चलने के लिए, तुमको चलना चाहिए तुम। और उसको पता नहीं कब की बातें याद दिला रहे हैं, उससे बातें करते हैं। सुनत जी, ये सोच के मुझे बहुत डर लगता है। और हे गुरुपा, फिर से उसने सपना देखा था, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर अभी नहीं चली तो 10 महीने बाद आएंगे। संगत जी, अब संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। गुरुपा, मेरे गुरु जी, इन लोगों को रोक लीजिए गुरुपा, मना कीजिए गुरुपा। मेरी बेटी को खूब लंबे आयु ब्लेस कर दीजिए मेरे गुरु जी। गुरु जी, उसके जो सपने हैं उसमें उसको सफल कर दीजिए गुरु जी। जो सिंगिंग करना चाहती है, सीखना भी चाहती है, बड़ा सिंगर भी बनना चाहती है गुरुपा। गुरु जी, इसको उसका सपना पूरा कर दीजिए गुरु जी। मेरी बेटी को लॉन्ग लाइफ, दीर्घ आयु ब्लेस कर दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे गुरु जी, कौन माँ होगी जो अपनी बेटी को इस तरह के कष्ट में देख के चैन से रहेगी। मुझे जरा सा भी चैन नहीं मिल रहा है गुरुपा, मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा है आजकल। संगत जी, ना तो मेरा शुक्राना करने का मन करता है, ना मेरा पूजा करने का मन करता है, ना मेरे भगवान के गुरु जी के ध्यान में मन लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ बेटी का ध्यान है और मैं सिर्फ उसी की चिंता में खुलती जा रही हूँ। गुरुपा, मेरी इस चिंता से मुझे निकालिए गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, बच्ची को लॉन्ग लाइफ ब्लेस कर दीजिए। वो जो लोग भी हैं उनको वापस भेजिए गुरुपा। गुरुपा, उन लोग को मना कर दीजिए, वो बार बार मेरी बेटी को सपने में ना आए। और उसकी जो दिमाग वाली समस्या है, ब्रेन में कीड़ा उड़ा है, उसको भी जड़ से खत्म कर दीजिए, सब ठीक कर दीजिए। उसको ब्रेन की याददाश्त ठीक कर दीजिए गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी, गुरुपा, ये सत्संग आपने भेजा था कि तेरी बेटी की कष्ट मैंने काट दिया है गुरुजी। ये मैंने अभी देखा है सत्संग में गुरुपा, मेरी बेटी का कष्ट काटने के लिए। और ये बोल रहे हैं संगत जी, गुरुजी की तेरी बेटी का एक बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। सत्संग सुन, शुक्राना कर गुरुपा। मैं सत्संग तो नहीं पूरा सुन पाई, शुक्राना है आपको, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट आपने काटा, उसका कष्ट काटने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। जय गुरु जी, मेरे बच्चों को अपने शरण में ले लीजिए गुरु जी। गुरु जी, आप कहते हैं ना कि बार बार एक ही बात मत बोला कर पुत्र। गुरु जी, मैं नहीं बोलूंगी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरु जी। हाँ, मैं रूपा क्या करूं, एक माँ हूँ। मैं तो बोलना बंद कर दिया था, मगर जब से उसकी तबीयत खराब हुई है, जब से वो इस तरह के सपने देख रही है गुरु जी, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुपा। मेरे डर को दूर कीजिए, मुझे चिंता मुक्त कीजिए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, और बेटी आपके जल प्रसाद से ही वो दवा खाती है। पानी जो जल जल में आपका जल प्रसाद मिला के ही दवा खाती है गुरुपा। गुरुपा, हे मेरे गुरुपा, इस बच्ची को सद्बुद्धि ब्लेस कीजिए गुरुपा। खूब लंबी आयु, दीर्घ आयु
ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। जो भी कष्ट है, जो संकट है, उसे काट दो गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझको आपके बड़े मंदिर आना है, अपने बच्चे को मत्थे टिकवाना है गुरुपा। मेरे मेरे बच्चे को कष्ट काट दीजिए, अपनी मंदिर बुला के ले चलिए गुरुपा, ले चलिए, बुला के नहीं, आप ही ले चलेंगे तभी हम जा पाएंगे। जैसे आप हमको वैष्णो माता के दरबार ले गए, जैसे आप हमको बनारस ले गए, वैसे अपने बड़े मंदिर भी ले चलिए गुरु जी। आप ले चलेंगे हम तभी जा पाएंगे गुरुपा, जब आप ले जाएंगे तभी हम जा पाएंगे गुरुपा। प्लीज गुरुपा हमको अपने बड़े मंदिर ले चलिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय बाबू जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। अभी मॉर्निंग के 8:42 हो रहा है, तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के बहुत सारे सत्संग मैंने अभी सुने हैं, लगभग, हाँ, मतलब अभी तो मैंने जो सुने वो तो सुने ही, लेकिन बहुत सारे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे पे मारन क्रिया नहीं, बेटे की अकाल मृत्यु कब है, फिर उस पे बहुत बड़ा कष्ट है, फिर पति के फिर जब सत्संग सुनती तो उसमें पति की भी मृत्यु, अकाल मृत्यु, ये सब बहुत सारे आ रहे थे। मैं नेगेटिव सत्संग सुनना नहीं चाहती, पर फिर थोड़ा सा डर जाती हूँ कि ऐसा कुछ अगर हुआ और मैंने सत्संग इग्नोर किया तो फिर क्या करूँगी, फिर इस वजह से मैं सत्संग फिर सुन लेती हूँ। और संगत जी, कल ऐसा हुआ कि कल मैं मॉर्निंग, मतलब नहा वहा के जब बाहर में धूप थोड़ी थी तो मैं बाहर निकली, तो मैं इधर उधर देख रही थी कि शायद गुरुपा के दर्शन हो जाए। गुरुपा अक्सर तितली रूप में मुझे दर्शन देते हैं, तो मैं इधर उधर देख रही थी कि पहले तो मैं जल चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को गई थी, तभी मैंने इधर उधर देखा, मुझे नहीं दिखी कबूतर मिले, तो मैंने जय गुरु जी कहा, सूर्य भगवान को जल्दी, मैं बोली आज गुरुपा शायद तितली रूप में मुझे दर्शन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, उस वो तितली रूप में आते हैं तो उन्हें कष्ट भी होता है। मैं इस तरह सोच के फिर मैंने कुछ नहीं कहा, इधर उधर देखती रही, तो इतने में मुझे एक, हाँ, एक तितली दिखी, उसकी कलर मिट्टी की कलर की तरह थी संगत जी। ऐसी तितली दिखी, मैंने जय गुरु जी कहा और वो तितली इधर उधर उड़ती हुई चली गई। फिर मैं जब बाहर निकली कि धूप थी, तो मैं जो बता रही, मेरी बाइक खड़ी थी, उसके आगे मैंने एक छोटी सी तितली बार बार राउंड मारते हुए, मतलब ज़मीन के पास ही बैठी हुई, फिर उसके बाद घूमते हुए, मुझे ऐसे ही लगा, मैं देख रही थी उसको, और बहुत छोटी सी थी, येलो कलर की। फिर मैंने जय गुरु जी कहा, मैं बोली गुरु जी ये क्या, आप पता नहीं बाइक से कोई दिक्कत है क्या, मैं मन में ऐसे सोची, फिर वो बात मेरे दिमाग से निकल गई। और फिर संगत जी, कल मैं फिर उसके बाद मैंने रात को सोचा भी कि शुक्राना करूँगी,
फिर मैंने किया भी नहीं। और फिर जाके शाम को जब मेरे अंकल जी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हुए, तो मेरे मुख से कभी भी नहीं निकलता था कि आप मत जाओ। मैंने बस ऐसे बोला कि आप कि वो बोल रहे थे कि जाने का मन नहीं कर रहा, कल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कि आप आज ही मत जाओ। और फिर उसके बाद जब वो बाहर निकल गए तो मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था कि रोज़ जल्दी का जल्दी निकल जाते हैं। अभी 7:15 ही हो रहा है, 8 बजे का ड्यूटी है, पता नहीं क्यों जल्दी निकल जाते हैं। फिर ऐसे तो मन में लगता था तो मैं कुछ बोलती थी नहीं, आपकी मैंने जाके ही बोल दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों निकल जाते हैं? तो कहीं रुकना रहता है आपको? क्योंकि मेरे मन में तो थोड़ा अलग थॉट भी आते हैं ना कि कहीं ये जाते तो नहीं है और कहीं और शायद बताते ना हो। तो फिर जाके वो कुछ नहीं बोले, बोले नहीं मैं जाता हूँ, आराम आराम से अपना गाड़ी चला के जाऊँगा। बोले अब जैसे ही पहुँचे फ़ोन किए कि तुझे पता है आज मेरे बहुत भारी एक्सीडेंट होने से बच गया। मैं डर ही गई कि इधर दुर्घटना के बहुत सारे सत्संग आ रहे थे, ये क्या हुआ? पर मैं ये जानी कि गुरुपा ने देखो साक्षात मैंने जितने सत्संग थे सब मैंने सुन लिए थे, तो गुरुपा ने ये कष्ट काट दिए। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, परमात्मा अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे के लिए भी उतने सारे सत्संग आ रहे थे संगत जी, जब मैंने सब सुन लिया ना तो उसके बाद एक हाँ सत्संग या मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे हाँ जो भी हाँ आ रहे थे ना, मतलब सत्संग उस तरह के हिसाब से ही आया, मुझे बोल याद नहीं है कि अब सारे कष्ट खत्म हो गए हैं। अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं मन को थोड़ा समझाए कि चलो भगवान ये तो अच्छा हुआ कि गुरुपा ने समझा बात को, मेरे सारे तकलीफ को दूर किए और मेरे कष्ट से हमें निकाले। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। किस प्रकार मैं शुक्राना करूँ संगत जी? इधर तो मुझे लग रहा है मेरे शरीरों में भी कष्ट होने वाले हैं, लेकिन गुरुपा उसको छोटे में काटते रहे, क्योंकि जब भी दर्द कहीं भी होता है मैं गुरुपा का वही घी रखी हूँ जो जोत जलाती हूँ, उसमें से बचा था एक दिन तो मैं उस घी को हाथों में लगाई, जहाँ जहाँ दर्द हो रहा था मैंने लगाया, तो वाकई में मुझे रिलीफ हो गया। रात को लगा कर सोती थी और सुबह उठी हूँ तो बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरे हाथों में दर्द भी थे। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे आँखों के लिए भी सत्संग सुनवाया कि आँखों में मैं जल प्रसाद तो डाल नहीं पा रही थी क्योंकि ड्रॉप्स नहीं थे, अब किसी में बोलूँ डालने के लिए, तो और ड्रॉप्स लाने बोल रही हूँ वो ला ही नहीं रहे। फिर मैं बोली कि अब मैं क्या ही करूँ, कैसे डालूँ? तो उतने में बस गुरुपा का सत्संग में बोली आंटी कि चंदन तिलक को भी आँखों के ऊपर लगा लो ना, तो गुरुपा आँखों को ब्लेस कर देते हैं। मैंने एक दिन लगाया संगत जी, मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ साफ हो रहा आँखें, एक ही दिन में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। फिर मैंने सोचा ये शायद मेरी वहम है, अब मैं 2-4 दिन करूँगी तभी मुझे पता चलेगा। तो कृपा फिर भी मैं जानती हूँ कि आप आंखें ब्लश कर ही रहे होंगे, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, लख लख शुक्राना। संजय जी मैं सत्संग में नहीं जा सकती और ना ही नहीं जा सकती, क्या आता ही नहीं बुलावा कहीं से, और ना ही बड़े मंदिर इधर ये ले जा रहे हैं। महीनों दिन हो गए मेरा मन करता है कि मैं जाऊँ, तो गुरुपा ने ऐसे सत्संग भेजे कि तू सत्संग में नहीं जा रही है ना, पर मैं जानता हूँ तू जाना चाहती है, तू बड़े मंदिर भी जाना चाहती है, तू सत्संग अपने घर में भी करवाना चाहती है, तो ये सत्संग सुन। तो मैंने जब सत्संग सुना उसमें आंटी जी के घर का पूरा सत्संग का डेकोरेशन पूरा सब कुछ सत्संग होते हुए मुझे लाइव था कि नहीं था पर पूरा दिखाया और कहा इसमें इस प्रकार अगर सोचो ना कि आप सत्संग में हो तो आपको इस सत्संग का फल मिलेगा। मैंने वो सत्संग देखा, मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा वाकई में सब कुछ सुन लेते हैं कि मेरी बेटी क्या चाहती है। संगत जी गुरुपा से जुड़ने के बाद हम लोग क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि गुरुपा का साथ हमेशा बना रहे। परिवार की तकलीफ जो आती है लगता है ये तकलीफ आनी बंद हो और हम अच्छी तरह से गुरुदेव से जुड़ पाए।
और भक्ति जो भी करने बोलते हैं वो हम कर पाए, क्योंकि अगर हम ये टेंशन में आ जाते हैं ना कि उन्हें ये होने वाला वो होने, तो सारा दिमाग उधर चला जाता। तो इस प्रकार हम गुरुपा से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए गुरुपा कहते हैं सरेंडर करो। सॉरी संगत जी। हाँ, गुरुपा को मतलब अपने आप को सौंप दो, ताकि आपको ये टेंशन ही ना रहे कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है या कुछ होने वाला है। जो होगा, जो करेंगे वो गुरुपा अच्छा ही करेंगे, और उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। अगर उस वक्त अच्छाई ना हो तो पीछे अच्छाई हो। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैंने टेंशन लेना बहुत बंद कर दिया। पहले मेरे बच्चे स्कूल जाते थे ना, मैं बहुत टेंशन लेती थी। पता नहीं कैसे जा रहे होंगे, क्या होगा नहीं होगा, रास्ते में कहीं गाय ना मार दे तो ये ना कर दे। मतलब अट्टे पट्टे दिमाग में जो भी आ रहा, हर विचार उथल पुथल होते रहते थे। लेकिन अब मुझे ये समझ आया कि ऐसा सोचना भी गलत था। गुरुपा जब अंग संग है तो वो सब कुछ सही ही करेंगे और हमारे लिए अच्छे से अच्छा करेंगे। हमारे बच्चों को तो वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रखते हैं संगत जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैं क्या ही कहूँ संगत जी, किस प्रकार शुक्राना करूँ। गुरुपा के जीवन में आने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी सुधार आई है कि ये ज़िंदगी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। ये 1.5 साल हुए होंगे मुझे गुरुपा से जुड़े हुए, और वो इच्छा फिर से जाग गई। अब लगता है सब कुछ नॉर्मल है और ये ज़िंदगी हम जी सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के और कितने शुक्राने ऐसे हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। गुरुपा ने ये भी कहा तुलसी का पौधा घर में लगा। और अभी एक सत्संग फ्लैश हुआ था कि अपने घर के उस कोने में मुझे बिठा 2 दिन के लिए। तो मैं यही सोचती हूँ गुरुपा, मैं कैसे बिठा सकती हूँ? स्वरूप उठा के मंदिर से फिर वहाँ रखूँ, क्या करूँ? और मैंने सत्संग तो खैर सुना ही नहीं है, पर मुझे ये लगा कि गुरुपा मैं क्या बिठा पाऊँगी, आप तो किसी रूप में आके उस स्थान पे बैठ सकते हो। तो मेरी यही विनती रहेगी आपसे कि आप खुद ही आओ गुरुपा और उस स्थान पे बैठो। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आंखें भी बंद कर रही हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक झलक के लिए प्रतीत हुआ कि गुरुपा मेरे सामने है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। कल मैं अपने बच्चों को भी गुरुपा के बारे में बहुत सारी चीज़ें, पुरानी पुरानी बातें बता रही थी। तो गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः